Here student, today we are taking the histogram and frequency polygon. We can draw the separately histogram and frequency polygon, and we can draw with the both on a same graph paper. So histogram and frequency polygon, या frequency curve. Here the data are given, marks 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, and number of student is 259,25864. These data are given and draw histogram with frequency polygon. So here the data are given in the inclusive way. This is the inclusive method. Here 29 and 20 both are included in this interval. It's not a continuous class interval. Continuous class interval 0 to 10, 10 to 20, 20, 30. These are the exclusive method. So first of all, convert the data inclusive to exclusive. So the marks is, here the difference is 1 from the upper limit and lower limit. So adjust the 0.5. यहाँ से 0.5 माइनस कर लो. 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5 और 59.5 से 69.5. ये हो गया आपका कंटिन्यूस. बस अब इनको ग्राफ पे यहाँ पर प्लॉट करना है. On the x-axis marks and on the y-axis frequency. Here starting from the 19 and whose difference is 10, so we can take the interval of 10 unit. 10 unit का आप यहाँ पर interval ले लो. But जैसे आप पॉइंट लो, इससे पहले एक बिफोर वाला पॉइंट लेना. 19 से पहले हो, 19.5 से बिफोर 10 होगा. 10 और माइनस करो तो 9.5. सो स्टार्ट फ्रॉम द 9.5 और यहाँ पर किंक लाइन का यूज कर लो. 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 और 69.5. Here the scale is on x-axis 1 centimeter equal to 10 marks, or on y-axis here maximum is 8, so 1 student या 2 student. 2, 4, 6, 8, 10. First of all, draw the histogram. 19.5 से 29.5, there are 2 students. ये वाला 2 students. Again 5, ये यहाँ तक 5. Next 8, ये 8. फिर 6, ये 6 और 4, ये 4. तो एक इसके बाद में एक और ले लो. 79.5. दिस इज द हिस्टोग्राम.
एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कर्व, तो फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए इसके मिड पॉइंट को लेना हो, तो मार्क ऑल द मिड पॉइंट, वन बिफोर एंड वन आफ्टर एंड join with them by the straight line. ये ज्वाइन करेंगे. दिस इज द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगन. नेक्स्ट इज द स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व. In the same question we are understand the smooth frequency curve. In the smooth way, smooth frequency curve is not different from this. It's a similar for the frequency curve. Here we are using joining with the straight line. If we are draw in this way, smooth way, that is the bell shaped. Smooth, and this is called the smooth frequency curve. अब यहाँ पे आप इसको स्मूथ तरीके से लाइनिंग पूरा एक कर्व बन जाए, दैट इज द स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द cumulative frequency curve या OGI. In the cumulative frequency curve, cumulative frequency here we are using the less than and more than method because we are using the cumulative frequency. In the cumulative we are adding the frequency. So there are two methods, less than method and more than method. We can take an example. Draw OGI for the following data in both the way, less than and more than. Marks and number of students. Here marks is 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 and 50, 60 and last is 60, 70. Here marks is given. The number of students is the frequency 4, 4, 7, 10. That is the frequency. 12, 8, 5. यहाँ तक information given है. Marks and number of students, and draw the cumulative frequency curve. Before drawing the cumulative frequency curve, find the marks in the less than way method and more than method. So less than, marks in the less than method, marks and their frequency. तो यहाँ पर ये जो कॉलम होगा ये लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप. तो लेस देन 10, यहाँ पर हम यूज करेंगे अपर लिमिट. लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70. तो लेस देन 10, लेस देन 10 वाले 4 स्टूडेंट, ये 4 हो. लेस देन 20 ये दोनों, 4 प्लस 4 8, फिर 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 37 और 37 प्लस 8 45 और 45 प्लस 5 50. ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये लेस देन टाइप. सिमिलरली वी आर फाइंडिंग द मोर देन टाइप. Before finding the more than, we are draw the less than data on a graph paper. X axis,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपको डेटा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है इधर फ्रिक्वेंसी में 50, तो आप 10 का इंटरवल ले लो, 10, 20, 30, 40 और ये 50। और इधर मार्क्स में 70 तक की रिक्वायरमेंट है, इधर मार्क्स में भी 10 का ही ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बस अब इसके बाद तो इसको प्लॉटिंग करना है। तो लेस देन में लेस देन 10, ये 10 पे देखो, 4, ये 4 हो जाए 0 से 10 के बीच। यहाँ पर स्केल को लिख देना, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर 10 यूनिट। नेक्स्ट लेस देन 20, 8, 8, लेस देन 30, 15, 20 से नीचे होगा। अगेन लेस देन 40, 25, 25, लेस देन 50 पे 37 है, 37 हो जाए। लेस देन 60 पे 45, लेस देन 70 पे 50, और ये इसको ज्वाइन कर लो सारे पर। तो ये तो हो गया अपना, 0 से ज्वाइन कर लो, 0 से लेकर 50 तक, ये तो हो गया लेस देन। सिमिलरली वी आर फाइंडिंग द मोर देन, तो मोर देन और इक्वल टू, ये अपना मोर देन टाइप। तो मार्क्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी, तो मोर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू भी इसमें यूज होता है, मोर देन और इक्वल टू 0। अगेन मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, 40, 50 और 60। इसमें लोअर लिमिट यूज करना है। तो मोर देन और इक्वल टू 0 और 0 से ग्रेटर वाले सारे स्टूडेंट हैं, तो टोटल कितना हो रहा था 50, इन सबका टोटल 50 है, तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 और 10 से ग्रेटर, ये 4 ही तो 10 से लेस है, तो 50 माइनस 4, 46। अगेन 46, अब डिफरेंस हो रहा है तो 1 बाई 1 माइनस करते जाओ, 50 माइनस 4 हुआ, अब 46 माइनस 4, 42, फिर 42 माइनस 7, 35, 35 माइनस 10, 25, 25 माइनस 12, 13, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, 5, एंड 5 माइनस 5, 0, 0 वाला होगा मोर देन और इक्वल टू 70 का, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो 0, मोर देन और इक्वल टू 70। अब इसको ड्रा कर लो, ये 0, ये 0 रहा, 0 पे 50, ये बनेगा। नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 10, 10 पे 46, नेक्स्ट 42, 42, अगेन 35, 30, नेक्स्ट 25, 25, 50 पे 13, 13 का बनेगा, 60 पे 5, 5, और 70 पे 0, ये 0, और इसको भी ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन किया, ये हुआ आपका मोर देन टाइप, ये लेस देन टाइप, ये मोर देन टाइप डेटा, एंड बोथ आर द cumulative frequency curve। ये सेपरेट भी आता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, और एक साथ है, एंड whose intersecting point, and if we draw perpendicular on the x axis, और ये जहाँ पर टच करेगा ये रहेगा आपका मीडियन,
मीडियन मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन फाइंड करने का भी मेथड, दैट इज द cumulative frequency curve.